मोहब्बत है, वो दिल अल्लाह का घर है कि जिस दिल में मोहब्बत है खुदा के। शाकिर मियाँ क्या बात कर रहे हो? मेरी बच्चियां इस मखलूत महफिल में शरीक हो। सवाल ही नहीं। पर मौलवी की बेटियां नमाज पढ़ रही हैं, किसी ने देख लिया तो अनबिलीवेबल। What do I do now? ठहरो, मैं शाकिर को कहती हूँ to get it on। यार ये तुम्हारी ईमान आपी और है आपी नजर नहीं आ रही। चाचू को इंट्रोड्यूस तो कराओ जरा उनसे। वो तो चली गई, आप पूछ रहे हैं? आप चली गई? अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम। वो ज्यादा देर तो नहीं हुई मौलवी साहब? नमाज का टाइम हो गया, मैं मस्जिद जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? मैं शाकिर अंकल का इंतजार कर रहा हूँ। मौलवी साहब के घर जाना है ना। वो मौलवी साहब की तबीयत खराब है। आप मम्मी पापा को मत बताना। क्यों भाई? मम्मी पापा को क्यों ना बताऊँ मैं? वो डांटेंगे ना। मौलवी साहब कहते हैं कि बीमार का हाल पूछना चाहिए, उससे सवाब होता है। चाचू आप भी चले ना हमारे साथ। सनी बाबा ठीक कहते हैं। हिबात बाबा आप हमारे साथ होंगे और अगर किसी ने पूछ लिया तो कम से कम मैं तो बच जाऊंगा ना। अब देर न करे ना, कोई आ गया तो गजब हो जाएगा, फिर निकल नहीं सकेंगे। चलो सनी बाबा जल्दी करो। हमारे बाबा आए? नहीं, मैं बाहर ही बैठा हूँ। आप लोग होके आ जाएं। इस तरह अच्छा नहीं लगता बगैर बताए किसी के घर आना। आप जाएं, मैं ही बैठा। जैसे आपका हुक्म सही, फिर हम अभी होकर आते हैं। जाने क्यों मेरा हाल कुछ ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। कैसा अजीब सा एहसास था। सिर्फ एक दीवार की दूरी पर वो नाज़रीन कहीं चल फिर रही थी। हाथ हो गए यार। अरे भाई हम आदमी यहाँ कमाल कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं। ये शाकिर की गलती इसने मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि आप यहाँ आए हैं, वो भी हमारे दरवाजे की हद तक आई है। मौलवी साहब के इसरार के आगे मेरी एक न चली और वो मुझे घर के अंदर ले गए। में आप बैठे ना, शाबाश। ये शाकिर बेचारा जो है ये बच्चियों से बड़ा इसका लगाव है, तो वो बस तरह कुछ गया है, कुछ घराने में अभी आता है। अल्लाह इसकी बीवी को और इस पर जजा दे
یہ جب سے میری بیوی کی وفات ہوئی ہے تو یہی بیچاروں نے میرا بکھرتا ہوا گھر سنبھالا. آپ بیٹھیے, میں ابھی حاضر ہوا. سامنے بک شیلف پر چند مشہور مصنفین کی مذہبی اور ادبی کتابیں نہایت سلیقے سے رکھی ہوئی. میرا ذہن پھر سے بھٹکنے لگا. جانے کتنی بار اس کی انگلیوں نے ان کتابوں کے ورق پلٹے ہوں گے. بیٹھیے. ارے نہیں, تکلف کی کیا بات ہے, کیا غریب کا تکلف اور کیا غریب کی خدمت. آپ بہرحال تکلف نہ کیجیے, کھائیے شاباش. میرے ساتھ بچپن سے ہی ایک عجیب سا مسئلہ تھا. میں کسی کے سامنے کچھ کھاتے ہوئے بہت شرم سی محسوس کرتا تھا. عبداللہ نظر نہیں آ رہا مولوی صاحب. ہاں, وہ ایک سیر روزہ تبلیغی دورے پہ گیا ہوا ہے, کل لوٹ آئے گا. بھئی آپ تکلف کر رہے ہیں, ہم آدمی ہیں. جی لیتا رہا ہوں. میں ایک سوال پوچھوں مولوی صاحب آپ سے, اگر آپ کو برا نہ لگے تو. ضرور کیجیے. ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کی بیگم وفات پا گئی ہیں. وفات کیا پانی, لیکن جی اس جہان سے اگلے جہان میں منتقل ہو گئی ہیں, اور بس پیچھے ایک مٹی کی ڈھیری اپنی نشانی کے طور کے اوپر چھوڑ گئی ہیں. کیوں بے شک؟ جی ہاں مولوی صاحب. نہیں, دراصل میرے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ اسلام میں تو کئی شادیوں کی اجازت ہے. کئی کی نہیں, 4 شادیوں کی ایک وقت میں اجازت ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تم 4 شادیاں ایک وقت میں کر سکتے ہو, بشرطے کہ تم چاروں کے ساتھ انصاف کر سکو. ساتھ ہی یہ فرمایا ہے کہ تم چاروں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ, لہذا اجازت بھی دی ہے اور ساتھ ہی آپ کو کمزوری بھی بتا دی ہے. نہیں, لیکن آپ کی تو مجبوری بھی تھی اور ضرورت بھی مولوی صاحب. پھر تو آپ ایک اور شادی کر سکتے تھے. ہاں, کیا بتاؤں آپ کو, ہم آدمی ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ اب لیکن ایک تو عمر اتنی ہو گئی ہے, اوپر سے بیٹیاں بھی اتنی بڑی ہو گئی ہیں, بال سفید ہو گئے. کچھ مایوب سا لگتا ہے اس طرح کی بات کرتے ہوئے, لیکن ہماری اپنی زوجہ کے ساتھ جو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ تھا وہ زوجیت کا کم اور انسیت کا زیادہ تھا. انسیت کیا مولوی صاحب؟ انسیت مطلب اب محبت کہہ لیں. اب انسان کا بدل تو خدا پاک کریم نے بھی نہیں بنایا نا. اب اگر یہ کوئی دینی مسئلہ ہوتا تو میں آپ سے کھل کے بات کرتا, تو یہ تو بڑی ذاتی سی بات چھڑ گئی ہے. میں آپ کو اس کے بارے میں آپ لیجیے نا, لے نہیں رہے. جی نہیں, پی تو رہا ہوں یہ چائے. چپل پسند آئے؟ ہاں بہت. یہ اب تمہارے پیروں کے ساتھ ہمیشہ لگے رہیں گے. اسے اللہ نے بلانا تھا, بلا دیا. اسے تم اس طرح اپنی روتی ہوئی شکل دکھاؤ گی نا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. آ جائیں سنی بابا, ہم واپس جا رہے ہیں. میں آ گیا. سنی اپنی بال تو لے جاؤ.
बरकत है हमाद साहब। जिसकी तरह आपको भी फिल्मी फ्लैशबैक्स आने लगे। वेक अप। अल्लाह, ये चप्पल तो बड़ी खूबसूरत है। ईमान, आप खूबसूरत लग रही है, मगर ये तो आपको पूरी है। अब्दुल्ला भाई, और मेरे लिए? तुम क्या समझती हो, मैंने कुछ नहीं लाया होंगे मुझे लगता है। अल्लाह, ये तो बड़ी खूबसूरत है। अच्छी है ना? बहुत ज्यादा। मैं अभी पहनकर आती हूँ। अच्छा यार, चाय भी पियेंगे। मैं बना देती हूँ आपको चाय। अच्छा सुनो जी। ये टोपी और तस्बीह ताया जी के लिए, और ये वो किताब है जो हया ने खराब कर दी थी। शुक्रिया। चप्पल पसंद आए? हाँ, बहुत। ये अब तुम्हारे पैरों के साथ हमेशा लगे रहेंगे। अच्छा, वो ताया जी नहीं है? बस आते ही होंगे, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। अल्लाह की रहमतें आप पे हों। जो वक्त आप निकालते हैं अल्लाह की इबादत में और उसका घर इबाद करते हैं। अजीज़म अब्दुल्ला, दादा की वफात के बाद बाबा ने अपनी कमिश्नरी के तकाज़ों के मुताबिक इस जदीद इलाके में ये घर बनवा लिया था। अलबत्ता हमारी पुरानी हवेली शहर के मुज़ाफ़ात में अब भी मौजूद थी। शाकिर चाचा को दादा जान ने बहुत छोटी उम्र में ही ड्राइवरी पर रख लिया था। बहुत शुक्रिया शाकिर चाचा और उसका खानदान अब भी इस हवेली की रखवाली करता था और उनकी रिहाइश अब भी वहीं थी। रात को रहते, सुबह को आराम से चले जाते। क्यों नहीं शाकिर भाई, जरूर आएंगे, रहेंगे, ये अपना ही घर है। बड़ी मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा भाभी, अल्लाह। अच्छा बहन जी, काम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरा रिश्ता शाकिर चाचा से नौकर और मालिक से बहुत बढ़कर था और मेरे तमाम घर वाले भी बचपन से मेरी उनके साथ असंसियत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ थे। लो, हमारे बाबा भी आ गए। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। सनी बाबा, आप भी आए हैं? क्या हाल? ये निगत के ससुराल वाले थे। देख ले, आप आज के दिन भी लेट हो गए हैं। सॉरी चाचा, आज फिर देर हो गई, लेकिन आई प्रॉमिस आइंदा कभी देर नहीं होगी। देखो जी, बात ये है, आज की तो खैर आपको माफी है, आज का दिन तो रियायत है, मेरी तरफ से तो माफी है। वो निगत आपसे बहुत नाराज है। चाचा, निगत को नाराज होने का पूरा हक है। आखिर बहने भाइयों से नाराज नहीं होंगी तो और कौन होगा? लेकिन है कहाँ ये? भाई यही कहीं है, वो ससुराल वालों से शर्मा के छुपी फिरती थी। ढूंढ लो। हाँ, मेरे सीधा। मेरा सारा बचपन इसी हवेली में शाकिर चाचा की बेटी निगत और बेटे जाकिर के साथ। जाकिर की हादसाती मौत के बाद मैंने कोशिश की कि निगत को भाई की कमी महसूस ना हो। जल्दी बच्ची। कैसी हो? ठीक। नाराज थी मुझसे? अच्छा, सॉरी। फिर देखो, निक्की की बच्ची, तुम रो रही हो? नहीं। फिर झूठ बोल रही हो मुझसे। ये क्या है फिर? जाके याद आ रहा था? हाँ। मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा क्या? है। जाके याद आ रहा था? हाँ। मैं भाई नहीं हूं तुम्हारा क्या? है। तो फिर देखो,
اسے اللہ نے بلانا تھا، بلا لیا. اسے تم اس طرح اپنی روتی ہوئی شکل دکھاؤ گی نا تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. اب وعدہ کرو آج کے بعد تو میرے سامنے کبھی نہیں روگی. ہنسو میری خاطر. اچھا یہ بتاؤ تمہارے وہ جو ہونے والے ہیں ان کی تصویر وغیرہ کی چھپا کے رکھی ہوئی ہے کہ نہیں؟ حماد بھائی بتاؤ نا کہاں چھپا کے رکھی ہوئی ہے؟ حماد بھائی مجھے شرم آتی ہے. جی تائی جی گرمی تو بلا شبہ بہت زیادہ تھی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ گرمی کا قطعاً احساس ہی نہیں ہوا. تبلیغ میں اتنے مصروف رہے کہ 3 دن پلک جھپکتے ہی گزر گئے. صاحب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. دل تو بیٹا میرا بھی بڑا کرتا ہے کہ میں دورے پہ نکلوں، لیکن کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جائے. ابا جی آپ کی مجبوری ہم دونوں ہیں نا، میں اور ایمان آپی. حیا نہیں بیٹی، تم میری مجبوری کہاں سے ہوگی؟ تم دونوں تو میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک. حیا تائی جی کا مطلب ہے کہ مسجد ہے، اس کی امامت ہے، اس کے انتظامات ہیں، درس اور تدریس کا سلسلہ ہے. کیوں تائی جی؟ بالکل بیٹے بالکل یہی بات ہے. اوپر سے عمر کا تقاضا ہے، بڑھاپا ہے، طاقت نہیں رہی اب لمبے سفر پہ نکلنے کی. ابا جی اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ بات کہوں. ہاں بیٹی میں تو تمہاری مدد کا انتظار کر رہا تھا. یا کوئی نہ کوئی ایسا سوال اٹھا دیتی ہے کہ بندہ سوچی پہ جاتا ہے. ابا جی آپ نے کچھ غلط نہیں کہا کہ مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جبر اور قدر کے درمیان پیدا کیا ہے. کسی کو بااختیار اور کسی کو مجبور بنا دیا ہے، اور یہی مجبوری انسان کو بندگی پر مائل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے، اور یہی مجبوری انسان کو انسان کے قریب بھی کرتی ہے. اس طرح سے تو حقوق العباد پورے ہوتے ہیں، اور مجبوری کوئی ناروا یا برا لفظ بالکل نہیں ہے. حیا واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی ہے بیٹی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ابا جی میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ نہیں بیٹے تیری یہی باتیں ہیں جو کہ میرا سر فخر سے بلند کر دیتی. اس گھر کی خوشبو اور میں ابا جی، اور تو وہ ہے جو کہ چھوٹی سی بات کرتی ہے اور اس سے اچھی اچھی باتیں نکلتی ہیں. یا آپ مجھے کبھی آپ کہتے ہیں کبھی تم کہتے ہیں. واٹس دی کنفیوژن؟ اب یہ تو آپ کو جج کرنا ہے کہ میں تمہیں کب آپ کہتا ہوں اور کب تم. جیسے ابرینا تمہاری بیٹی ہے ویسے ہی نرمین میرے گھر میں تمہاری امانت ہے. سبزہ گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ This is the whole plan. منصوبہ تو بڑا کمال کا ہے. اس جگہ 5 اسٹار نہیں 7 اسٹار ہوٹل ہونا چاہیے. مگر مسئلہ زمین کا ہے. یہ زمین بورڈ آف ریونیو کی گروی ہے. You don't worry about that. جو بورڈ آف ریونیو کا سینئر ممبر ہے وہ میرا ڈی سی رہ چکا ہے. میں ان سے بات کر لی ہے. He has final authority in this matter. مان گئے یار مان گئے. بھائی زمین کے بارے میں تمہارا دماغ خوب چلتا ہے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. How are you? فائن بیٹا بیٹھو. سوری ہم لوگ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے. ایک تو آپ کی یہ بیٹی ہے نا ایک ایک چیز سلیکٹ کرنے میں گھنٹوں لگا دیتی ہے. کوئی چیز اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی. او پلیز ڈیڈی کو میری چوائس کا پتا ہے اور میں ہر ایری ویری چیزوں پر اپنا ٹائم نہیں ضائع کر سکتی. I can't lose my standards. بیس سے ایک بات تو کنفرم ہوئی. تم ان خوش نصیبوں میں سے ہو جو اس کے اعلیٰ معیار پہ پورے اترتے ہیں. میں فریش ہو کر آ گئی. ڈیڈی آپ درمین کو کیوں نہیں لے کر آئے؟ اب بیٹا تمہیں پتا ہے وہ کچھ موڈی سی ہے. اور ویسے بھی جب سے یہاں پچھلی بار پارٹی سے گئی ہے نا اس کا موڈ کچھ آف سا ہے. کمال ہے.
हमारी बेटी नाराज है हमसे और तुम मुझे अब बता रहे हो? व्हाट इज द मैटर अबरीना? पापा वो आप लोगों से नाराज नहीं है, हमारे से नाराज है, उसको इग्नोर करता रहता है। उससे कहो कि मैं खुद हम्माद के कान खींचूंगा और फिर कब तक हमसे नाराज रहेगी? आखिर आना तो उसने इसी घर में है। अच्छा मेरा ख्याल है दिलावर, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट फिक्स अ सूटेबल डेट फॉर देयर एंगेजमेंट। जैसे अबरीना तुम्हारी बेटी है वैसे ही नरमीन मेरे घर में तुम्हारी अमानत है। ये तो है, ये तो है। अबरीना भाभी अपनी छोटी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती थी और बाबा को अपनी कारोबारी रिफाकत इस शादी से और भी मजबूत होती नजर आ रही थी, जबकि ना तो मेरी अबरीना भाभी की छोटी बहन में कोई दिलचस्पी थी और ना ही बाबा के कारोबार में। मेरा ख्याल है उस दिन की बातों का कोई असर नहीं हुआ आप पर। डैड, ये आप मुझे कभी आप कहते हैं कभी तुम कहते हैं, व्हाट्स द कंफ्यूजन? अब ये तो आपको जज करना है कि मैं तुम्हें कब आप कहता हूं और कब तुम। जी, मैंने आपसे कहा था कि भाई के साथ फैक्ट्री जाया करें, उसे बिजनेस में शेयर करें। मैंने आपसे कहा था कि जमीनों को लुक आफ्टर करें और मैंने आपसे ये भी कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में असिस्ट करें। जी कहा था। मगर आप तो सोए हुए हैं। तो जागे होंगे। अगर जाग गए हो तो जाकर पुरानी हवेली का जायजा लो। सारे कमरे बर्बाद हो चुके हैं और रेनोवेट करो उन्हें। कोई चीज चाहिए हो तो मुझे बताओ, मैं अगले इलेक्शन में उसे अपना कैंप ऑफिस बनाना चाहता हूँ। जी बहुत बेहतर, मैं जाऊं? हाँ सुनो जी, तुम्हारी तरफ से मुझे इस टास्क की 2 दिन में फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलनी चाहिए। गो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आया बैठ। नहीं, मुझे बहुत देर हो रही है, दादा भाई की स्टडी में जाना है। आप ये बताएं, सफाई करा दी थी वहाँ की? निकट सुबह से लगी हुई है बेटा, इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, 2 दिन तो लगेंगे सफाई करने में। आई नो। चले मैं उससे वहीं जाके मिलता हूँ। अच्छा सुने, चाय जरूर बना दीजिएगा। हाँ बनाती हूँ ना। ओके। क्या बात है भाई, आज तो ये जाले वाले मट्टी वट्टी सब कुछ साफ हो गई। मेरे प्यारे से भाई ने जो आना था तो सफाई सुथराई तो जरूरी थी ना। बड़े मक्खन लगाए जा रहे हैं, खैरियत तो है? चलो, मेरे आने से कम ये फायदा तो हो गया कि सफाई हो गई इस लाइब्रेरी की। तुम्हारे वो कैसे हैं? भाई आप तो बस ना हमेशा शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए देख लें, किताबें चेक कर लें मैंने सही रखी है कि नहीं। शुरू हो जाते हैं हर वक्त। आज तो उर्दू शेर व शायरी पढ़ने को दिल कर रहा है। कहाँ गई है सारे मीर, आतिश, दर्द, मोमिन? और किसी दिन प्लीज लॉगिंग कर लो। अब ये देखो, लॉगिंग तो तुमने कर दी है, लेकिन किताबों को तरतीब से भी रख दो तो अच्छा है। ये इंग्लिश लिटरेचर क्या कर रहे हैं इसके अंदर? ये शेक्सपियर है यहाँ पड़े हुए, देखो।
रखो उसको जाके इंग्लिश सेक्शन में। जी भाई। और भी सारी किताबें इंग्लिश मिक्स नहीं है। भाई मैं रख देती हूँ। जाओ। दीवाने गालिब और नुस्खा वफा किधर है निगत? नुस्खा वफा और दीवाने गालिब, अरे भाई वो तो मेरी एक सहेली कुछ दिनों के लिए लेके गई है। चलो कोई बात नहीं, अब याद से वापस ले लेना उससे। किताबें जब देते हैं ना तो वापस ले भी लेते हैं। जी भाई, मैं आज ही अब्बा को कह के ना ईमान से किताबें वापस मंगवा लूंगी। ईमान कौन? ईमान चचा अलीम की बेटी, मौलवी साहब जो सनी को पढ़ाने आते हैं ना, उनकी बेटी। आई सी। तुम जानती है उसको? सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी, मेरी बचपन की सहेली है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने क्या कहा, वो कैसी सहेली है तुम्हारी? जान से भी प्यारी? क्यों, क्या हुआ? हाँ, ये मसला कुछ टेढ़ा हो गया। क्यों भाई, क्या हुआ? तुम एक तरफ तो कहती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए जान, और दूसरी तरफ वो सहेली भी जान से प्यारी हो गई। चूज वन फौरन। भाई आप तो भाई है ना, वो मेरी सहेली है, मेरा कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। सॉरी, छोड़ दिया, जाओ। आपकी रोज भी कान खींचते, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा प्लीज ये ना करना, बात करना ना छोड़ना मुझसे, ठीक है? अच्छा जाओ, चाय लेकर आओ, खाला ने चाय बना दी होगी, जाओ। ठीक है। परी चेहरा लोग कैसे हैं? सबसा गुल कहाँ से आए हैं? अब्र क्या चीज है, हवा क्या है? ईमान बेटे। जी अब्बा जी। तो नहीं गई ईमान? नहीं अब्बा जी। वो किताब चाहिए, जवारुल हदीस, अब्दुल्ला मांग रहा। जी अब्बा जी, मैं देख लेती हूँ। मुस्तफा आजमी की किताब है, जवारुल हदीस। जी अब्बा जी, देख लो। अब्बा जी ये है। मौलवी साहब की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो अब्दुल्ला को मौलवी के बजाय आलिम बनाए, इसीलिए वो उसकी हर तरह से मदद करते रहते थे। इस दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी बात अब्बा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हम्माद भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा। अस्सलामुअलैकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई शाकिर मियाँ और निगत बेटी, तुम भी हैं? जाओ, वो तो कमरे में बैठी हुई हैं दोनों। और शाकिर, मैं तो तुम्हारी तरफ आने का सोच रहा था। चलो ठीक है। अच्छा तो ये है नईम भाई, तभी तो मैं कहूँ आज चेहरा सुर्ख अनार जैसा क्यों हो रहा है? वैसे मैंने सुना है ये लाहौर में फोरमैन है, रेलवे में। खबरदार जो ने फोरमैन कहा, वहाँ सब इंजीनियर हैं। ओहो, सब इंजीनियर, बड़ी खबर रखी है भाई। बस कर दो है यार, बेचारी को अपनी बात तो पूरी कर लेने दो। दिखाओ। वैसे आपने एक और बात नोट की इस रिश्ते में? क्या? आप चाहते चाहते कि खानदान में किसी को टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रेलवे से पास जो आ जाया करें। देखा ईमान तुमने कि तुम्हारी छुटकी ऐसी बाज नहीं आएगी। बच्चों अब तुम्हें तो एक भी पास नहीं मिलेगा।
मैं सिर्फ अपनी जाने जिगर ईमान को पास देकर अपने पास बुलाया करूंगी और मैं भी साथ आ जाया करूंगी। निकर, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? सिर्फ 4 माह तो रह गए फाइनल एग्जाम्स में। यही तो सारी परेशानी है कि मैं इस मुकाम तक पहुंचकर अपनी पढ़ाई अधूरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन अब्बा से कैसे कहूँ कि वो नईम के घर वालों से बात करें, फिलहाल मुझे तालीम जारी रखने की इजाजत दे दें। तो इसमें क्या मसला है? अगर आप खुद नहीं बोल सकती तो किसी और से कहलवा दें। अरे वाह, इस छुटकी की जबान ही नहीं बल्कि जहन भी काफी तेज चलता है। इस दुनिया में एक ही हस्ती ऐसी है जिनकी बात अब्बा कभी नहीं टाल सकते, और वो है मेरे हम्माद भाई। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं उनसे बात करती हूँ। अरे वाह छुटकी, क्या बात है तुम्हारी। अच्छा ईमान, वो शायरी की किताबें अगर पढ़ ली हो तो वापस दे दो, हम्माद भाई पूछ रहे थे। हाँ हाँ, मैं भी दे दूँ। तो ये है नईम भाई, फोरमैन, सब इंजीनियर। ये सच है कि इस मर्तबा शाकिर चाचा की खुशी में शिरकत करने में मेरी अपनी शदीद खर्च भी शामिल थी, लेकिन ये भी सच है कि अगर बात ईमान की एक झलक देखने की ना भी होती तो भी मैं जरूर शाकिर चाचा के घर जाता, क्योंकि मेरे सारे घर वालों ने उनकी इस खुशी में शामिल होने से माजूरी जाहिर। चाचा बस आया, जल्दी कर, मेहमान आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारे बाबा आपने इतनी देर कर दी, मैं आप ही की राह देख रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। मुबारक है, कोई बात नहीं, आप आ तो गए ना। वो जो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आया। घर तो बड़ा जबरदस्त सजाया जाता। अल्लाह की मेहरबानी है, कमिश्नर साहब की भी, ये सारी उन्हीं की वजह से। बस ये गरीबी दावे का थोड़ा बहुत इंतजाम किया है। वो क्या है भाई? अच्छा बाबा, आता हूँ, देख लीजिए हमारे बाबा आए हुए। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं यहाँ हूँ, आप अंदर जाके बात सुन के आइए। अच्छा, बड़ी मेहरबानी, आप जरा देख लीजिएगा, अभी मौलवी साहब के घर वाले भी आते ही होंगे। जी जी, आप जाइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख रहा हूँ। चल भाई चल, क्या चीज बुला रही है। देखा, उसके चेहरे के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। बात किसी और से करता हूँ, सामने वो आ जाती है। सॉरी, माफ कर दीजिए, मैंने पूरा रास्ता रोका आपका। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बाहर जाना चाहती हूँ, आप मेरा रास्ता छोड़ दे। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं,